हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। The growing awareness about the environmental protection has resulting in a new measuring across the world. The later Prime Minister, Mr. Indira Gandhi, was the only head of the government attending to 1972 Stockholm Conference, which are called the UN Conference on Human Environment. The Rio Conference 20 years later was called to the UN Conference on Environment and Development. It was the Mrs. Indira Gandhi who is the first appointment of the poverty was the greatest is polluted and unless it was ultimated to through their national and international effort, it was the first to the take about to protection and planet for environmental disaster. UNDP, their World Bank and other institutions of UN system are now advocating to the elimination of poverty as a central task in a stable development. In needed environment and development policy are as seen as complementing to each other. The confluences between the requirement of the long-term environment interest and the intermediate to the accumulation of development is a continuity to be resolved. But only world order cannot be a suitable or 3/4 of it is a population continue to live in a poverty. Environmental right and developmental right together continuity to the democratic and human right of all the people of the world. The Montreal Conventions and the Convention and the Climate Change, Biodiversity and the Forest adopted at a Rio are important landmarks in the world movement for the sustainable development and environmental protection. India has accepted these conventions and taking to the systematic measures in implement them. An environmental action program funded by UNDP is under implementations. There are 31 schedules for the industrial pollution control approved by the World Bank, involving of US dollar 150 millions. On the anvils are common influence plant for there a small industry located in a custard. There is a big plant began to look at after the individually. And 17 grossly polluted industries has been to identified for environmental control within a time schedule. For content categories of industries prior to the environmental clearness in a compulsory before there can be set up. In the regard to be transport pollution apart from a conservation and measuring the pollution free engines are the beginning design, some of which has already been introduced for a two-wheelers, three-wheelers and some of the popular car. A national forestry plan in the process. Environmental brace as operations and brace as ecological task force has been organized by non-government organization, mean NGO. India is a wildlife conservation project has met with the remarkable success. India has a protected network of 75 national parks and 420 wildlife sanctuary. The Tiger project has been a great success. And that India has also elaborated the law relating to the prevention of the population of water, soil and air and a system of environmental audit of most of industry project. Well, this is the voluntary for the most countries. India has a voluntary rule in this regard. India is also in case in the serious and systematic for to be developing of alternative and renewable source of energy like a solar, wind and a wave energy, which are environmental friendly. It possesses a layer of the solar energy on which some significant technologically process has been made. India is taking all this is a measuring of partly with the international assistance. यदि बात यहाँ पर हम करें पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता, देखिए कहते हैं, मैं पहले ही आपको बताया था कि इसका जो है हर तरह से जो है संरक्षण करने के लिए प्रयत्नशील है और वचनबद्धता दिखाई जाती है। लेकिन ये सारी बातें जो होती है सिर्फ किताबों में ही नज़र आती है। कहते हैं पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूकता बढ़ाने से पूरे विश्व में नए उपाय किए जा रहे हैं।
स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में स्टॉकहोम जो है सम्मेलन में सम्मिलित होने वाली अकेली राष्ट्र अध्यक्ष थी, जिसे संयुक्त राज्य मानव पर्यावरण सम्मेलन का नाम दिया गया था। और 20 वर्ष पश्चात रिले सम्मेलन को संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन भी कहा गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने संकेत किया कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषित फैलाती है, यानी गरीबी जो है सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, और तब इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इस ग्रह की पर्यावरणीय आपदा को बचाने की जो है बात करना बेकार सी रहेगी। यूएनसीपीओ ने विश्व में जो है विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अन्य संस्थाएं अवलंबनीय विकास हेतु जो है गरीबी उन्मूलन की पैरवी कर रही है। निसंदेह पर्यावरण विकास की नीति एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी जो दीर्घकालीन पर्यावरण हितों की आवश्यकता तथा विकास की तत्कालीन जरूरतों के बीच विवादों को सुलझाने की आज जरूरत है। लेकिन विश्व की कोई भी व्यवस्था जो है अवलंबनीय नहीं हो सकती है यदि इनकी 3/4 जनसंख्या गरीबी में जो है जीवन यापन करती हो। यानी जब 3/4 जनसंख्या अगर गरीबी में अपना जीवन यापन करती है तो उस देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का एक सबब बन सकता है। पर्यावरणीय अधिकार और विकासात्मक अधिकार मिलकर विश्व के लोगों को लोकतांत्रिक और मानवाधिकार का निर्माण करते हैं। मैड्रिड सम्मेलन तथा मौसम परिवर्तन पर सम्मेलन तथा रियो में जैव विविधता और जंगलों का स्वीकार किए गए प्रस्ताव अवलंबनीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय में से एक था। भारत ने सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार भी किया और उन्हें क्रियान्वित करने का उपाय भी कर रहा है। यूएनपीडी द्वारा प्रदान की गई राशि एक पर्यावरण कार्य योजना पर काम चल रहा है। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जो है स्वीकृति जो है 31 योजनाएं हैं, जिनमें अमेरिका के $105 मिलियन की भागीदारी है। आरंभ छोटे उद्योग से किया गया जो एक ही स्थान पर स्थित था। बड़े उद्योग की व्यक्तिगत और सतत पर देखभाल की जा रही है। कहते हैं निश्चित सीमा में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों को पहचान कर ली गई। कुछ विशेष उद्योग को स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। वाहनों के प्रदूषण के लिए संबंध में परिवर्तन करने के उपायों को अतिरिक्त प्रदूषण मुक्त इंजन निर्माण किए जा रहे हैं, जिन्हें पहले से ही 2 पहिए, 3 पहिए और अन्य लोकप्रिय कारों में प्रयोग किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वन की योजना पर काम चल रहा है और गैर सरकारी संस्थाएं द्वारा पर्यावरण विग्रेड वनों की कटाई के विरुद्ध विग्रेड और पारिस्थितिक कार्य बल संग्रहित किए गए हैं। भारत के वन जीवन संरक्षण की कार्य योजनाओं के जो है भरपूर सफलता मिली है और भारत में 75 राष्ट्रीय उद्यान है और 421 वन्य जीवन अभयारण्य एवं सुरक्षा ढांचा है। टाइगर कार्य योजना ने काफ़ी सफलता प्राप्त किया है। भारत में जल, मृदा और वायु प्रदूषण रोकने के लिए काफ़ी कानून है तथा अधिकांश उद्योग के पर्यावरण की जांच की व्यवस्था भी की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि भारत में जल, मृदा, वायु प्रदूषण के लिए रोकने के लिए बहुत बड़ा कानून बनाया गया है। अगर बहुत बड़ा कानून बनाया गया होता तो गंगा जो होती प्रदूषित नहीं होती, यमुना जो होती आए दिन प्रदूषित होती है तो वो नहीं होती। तो कहते हैं भारत में जल और मिट्टी और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होता है। जबकि कई देशों में यह जो है कुछ अधिक से अधिक जो है सुरक्षित है, परंतु भारत में यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत में वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन और तरंगे से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने के गंभीर और व्यवस्थित प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण हितैषी भी है और सौर ऊर्जा पर अधिक बल भी दिया जा रहा है और इस दिशा में कुछ प्रौद्योगिक प्रगति भी की गई है। भारत इन सब उपायों का अधिकांशिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काम कर रही है। देखिए भारत भी बहुत ही अग्रसर है इन चीज़ों में, लेकिन कहते हैं सरकार करे भी तो क्या करे, जब कहते हैं इनको संरक्षण करने वाले व्यक्ति ही नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं सरकार कितना जिम्मेवारी उठाएगी, जब इंसान स्वयं ही समझदार नहीं बनेगी पर्यावरण संरक्षण होना संभव नहीं है।